Student, let's see in continuation of lecture 2 of heat. We'll start with specific heat, right? Students, I'm having an object of mass 5 kg. How much kg? 5 kg. I want to increase its temperature. Let's say initial temperature was 30 degrees centigrade and I just want to increase the temperature to 60 degrees centigrade. So I have to give some heat, right? Heat and temperature are two different things, right? This is heat and this is temperature. Heat is a form of energy and temperature is the degrees of hotness and coldness, right? How heat a body is, how cold a body is, that will be decided by heat, by temperature, but heat is different. So don't be confused with the terms heat and temperature, correct? So, but there is another body which mass is 10 kg and it is at 30 degrees centigrade. Screen is visible to all. Yes. I want to increase its temperature to 60 degrees centigrade, right? So in which case I have to provide more heat? In the first case and in the second case? Why? 30 to 60, 30 to 60, why more? It is because mass is more, amount of substance is more. हमें हर एक मॉलिक्यूल की टेम्परेचर को 30 से 60 तक लेके जाना पड़ेगा. Getting or not? Yes. So that's why एक combined form में हम बता सकते हैं Q. Q is the heat, right? That is proportional to mass. Understood why I wrote this? More mass, more heat will be required, right? To increase the temperature. Yes or no? अच्छा. 30 to 60 पे कन्वर्ट करने के लिए जितना हीट देना पड़ेगा, अगर मैं इसको 30 to 80 पे कन्वर्ट करूं, उतना हीट देना पड़ेगा या ज्यादा देना पड़ेगा? I have to give more heat or less heat? 30 to 60 कन्वर्ट करने के लिए मैंने जितना हीट दिया, 30 to 80 या 90 डिग्री, मोर देन 60 अगर करना चाहता हूं मैं टेम्परेचर, तो मुझे ज्यादा हीट देना पड़ेगा या कम? ज्यादा देना पड़ेगा. ज्यादा heat. That is also proportional to, yes, that is also proportional to delta. So this M is mass and is delta T is change in temperature. Change in temperature means it may be increasing, it may be decreasing, but that is a change, correct or not? Getting my point or not? So combinedly I can write Q proportional to M delta T. Can I write or not? We can write or not? Yes, sir. Students, मैंने Yes, sir. एक का कॉपर लिया. क्या लिया मैंने? 1 kg का कॉपर लिया. मैंने 1 kg का आयरन भी लिया. I just took 1 kg of iron. मास तो सेम है और मैंने इसका टेम्परेचर 30 to 50 कर दिया और इसका टेम्परेचर भी मैंने 30 to 50 कर दिया. तो क्या आपको लगता है दोनों को एक हीट देना पड़ेगा? क्या आपको लगता है इक्वल हीट देना पड़ेगा दोनों को? ये कॉपर है और वो क्या है? आयरन है, तो दोनों को सेम हीट देना पड़ेगा क्या? तो नेचर ऑफ द मटेरियल तो चेंज हो रहा है ना? yes. तो सेम हीट नहीं देना पड़ेगा. तो यहाँ पर तो हम नहीं बता सकते कि सर एम तो 1 kg है, डेल्टा टी तो वो 30 to 50 है, तो दोनों को सेम हीट देने से हो जाएगा. आर यू गेटिंग माय? तो मतलब इस प्रोपोर्शनलिटी के पीछे और भी एक चीज है, तो दैट इज Q प्रोपोर्शनल टू, ये प्रोपोर्शनलिटी अगर हटाएंगे तो दैट इज इक्वल टू, वी कैन राइट M C delta T. This C is proportionality constant and we also called it yet the one and only specific heat. Getting or not? This C is known as proportionality constant और उसका नाम क्या है? Specific heat. What is its name? Specific. अगर मैंने बताया कि भैया आप मुझे बताओ कॉपर का स्पेसिफिक हीट बताओ, आयरन का स्पेसिफिक हीट बताओ, तो आप क्या करोगे? सर C is equal to Q by M delta T ले लेते हैं, राइट? C is equal to क्या हो जाएगा? Q by M delta T हो जाएगा कि नहीं? और इसका यूनिट कोई बता सकता है? Can anyone say its unit? Q का यूनिट क्या है? ऐसा है कि बात कर रहा हूं मैं. एनर्जी का यूनिट क्या है? जूल है ना? जूल डिवाइडेड बाय मास का क्या है? केजी है. ये केल्विन है, तो मतलब इस तरह भी लिख सकते हैं जूल kg inverse Kelvin inverse. All understood about the unit? So C is equal to Q by M delta T. You all understood up to this formula, right? Yes or no? Getting that? Yes, sir. So let's see now.
if this is C is equal to Q by M delta T, then just say me, students, let I just took M is equal to 1 kg. How much mass I took? 1 kg. Delta T I took 1 degree centigrade. So if I put both the values, then C will be equal to Q. Yes or no? Understood, students? Yes. So what is specific heat? Please, what is the specific heat? So we can define, right? The heat required, right? Specific heat का definition बता रहा हूँ मैं. The heat required to raise, keep on writing. The heat required to raise the temperature of, unit mass of a body. Unit mass of a body. Unit mass मतलब 1 ग्राम ले सकता हूँ, 1 kg ले सकता हूँ, right? Through unit degree centigrade, through 1 degree centigrade, or that is Kelvin, correct? It's called specific heat capacity, right? It's called specific heat. Keep on writing with me, those who are not having network issues, right? Is called specific heat capacity or specific heat, right? Underline, हमेशा जहां पर कर्ल रहेगा उसको अंडरलाइन करना सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, आंसर में, और स्पेसिफिक हीट, राइट? ठीक है. So that means if I will be asking you, say me the specific heat of copper. So what are the ingredients that you are going to ask me? Sir, give me 1 gram of copper, right? Yes or no? सर मुझे थोड़ा अरेंजमेंट चाहिए जैसे कि मैं उसकी टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा सकूं. तो उसके लिए मुझे जितना ही हीट देना पड़ेगा, that will be the specific heat of copper or not? Understood ना स्टूडेंट्स? मैंने बताया मुझे स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन बताओ, तो आप लोग क्या करोगे एक्सपेरिमेंटली? अगर मैंने ऐसा यूनिट पूछा स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन का, तो आप कितने आयरन लोगे? 1 kg, राइट? और उसकी टेम्परेचर को कितना इंक्रीज करवाओगे? 1 डिग्री सेंटीग्रेड. तो उसके लिए हमें जितना हीट देना पड़ेगा उसको हम कहेंगे उसी मटेरियल की स्पेसिफिक हीट बताएंगे. अंडरस्टूड और नॉट? Yes. ठीक है. नेक्स्ट चलते हैं मोलार हीट कैपेसिटी. नेक्स्ट गिव हेडिंग molar. I'll share the notes, don't worry, just keep on understanding. Any part during the part of explanation, just ask me, right? Molar heat capacity, right? Molar heat capacity, उसको भी कैपिटल C से लिखा जाता है. just write it. तो in spite of unit mass, हमें unit mass लेने की मतलब we will not take unit mass 1 kg या 1 ग्राम नहीं लेंगे. अभी हम 1 मोल की सब्सटेंस की बात करेंगे. Are you understanding the point? In spite of taking 1 unit mass, 1 mole of substance is considered, right? ये जो पूरा हीट कैपेसिटी हमने क्या डिफाइन किए? यहाँ पर हमने यूनिट मास लिखे ना स्पेसिफिक हीट को डिफाइन करने के लिए. बट अभी हम यूनिट मास के बदले में, राइट, इन स्पाइट ऑफ यूनिट मास, अगर सारे चीज इन स्पाइट ऑफ यूनिट मास 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज कंसिडर्ड. If 1 mole of substance, if in spite of impact, if 1 mole of substance is considered, right? उसी के लिए जितना हीट चाहिए हमें टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए, उसको क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? मोलर स्पेसिफिक हीट. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? अंडरस्टूड और नॉट? Yes. Right, unit mass, if 1 mole of substance is considered, then थोड़ा लिख दो, then heat required to change the temperature, of 1 mole of a substance, through 1 degree centigrade, or Kelvin, right, is called molar heat capacity. Is called molar
heat capacity underline is called molar heat capacity. Understood students? तो अभी क्या लिखेंगे, C is equal to Q ना, मतलब M ना लिख के M delta T लिखेंगे, राइट? And student, अगर molecular weight of a substance is M, you know, if molecular weight के बारे में आपको पता होगा, molecular weight, if molecular weight of a substance, if molecular weight of a substance is capital M, right? Then यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, Q by n delta T जो था उसको हम Q by delta T को हमने C लिख दिए और ये M into C लिख सकते हैं. मतलब ये जो N है, what is that N? M by M, molecular weight by moles. Yes or no? Students understanding now? And you know C is equal to Q by M delta T. ये हमारा एक्चुअल फॉर्मूला है, बट अभी हमने क्या किए, N ले लिए, मतलब M कितना मोल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास. तो अगर हम इसका SI यूनिट निकालेंगे, अगर इस केस पे अगर SI यूनिट की बात करेंगे तो SI यूनिट क्या हो जाएगा, देखो ऊपर में क्या है, Q है, मतलब जहां पर मास था वहां पर क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा. सो दैट विल बी जूल पर अभी केजी ना लिख के क्या लिखेंगे, मोल इनवर्ट्स केल्विन इनवर्ट्स. स्टूडेंट्स अंडरस्टूड ना? SI यूनिट ऑल अंडरस्टूड? Yes, सर हाँ यस बताओ. सर वो मोल इनवर्स कैसे होगा सर, आपने पहले स्टूडेंट्स यहाँ पर हम देख सकते हो, यहाँ पर यू सी हियर कि ये क्या हो जाएगा, C का वैल्यू क्या हो जाएगा, M इंटू सी, राइट? यस सर नो? सी हियर. तो मोलर स्पेसिफिक हीट जो है C, वो कितना हो गया, molecular weight into C हो गया, specific heat small c, this one is small c, correct? See here, this one is small c, specific heat, correct na? And you know C is equal to how much, Q by delta T. You know C is equal to Q by delta T. This small c is how much, Q by delta T ना. यहाँ पर हमने लिखे C is equal to Q by M delta T. And N क्या है, N जो है वो क्या है, यहाँ पर हमने लिखे M by M. तो इस यहाँ पर अगर पुट करेंगे तो इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, जूल, what will be student, जूल mole inverse and Kelvin inverse. Is that clear? yes, ठीक है. अभी देखते हैं, चलो थर्मल कैपेसिटी. नाउ गिव हेडिंग थर्मल कैपेसिटी. कीप ऑन राइटिंग. तो अभी हम यूनिट मास ना लेके होल मास ऑफ द बॉडी, अगर पूरा मास ऑफ द बॉडी कंसीडर कर लेंगे, पूरा एक बॉडी का टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितना हीट चाहिए, पूरा कुछ भी है, राइट? उसको क्या कहते हैं, थर्मल कैपेसिटी, राइट? तो यहाँ पर थोड़ा ऐड करो. इफ, right, if instead of unit mass, if instead of unit mass we consider, instead of unit mass we consider the whole mass, we consider the whole mass of the body, we consider the whole mass of the body, right? Then the heat required, then the heat required to raise the temperature, then the heat required to raise the temperature of a given body by 1 degree centigrade is called its thermal capacity. Keep on writing, update the notes. Is called its thermal capacity. It's called its thermal capacity, right? So that means thermal capacity मतलब क्या है, right? Thermal capacity is equal to, thermal capacity is equal to M small c, that is equal to molecular mass में divide कर देंगे तो M capital C हो जाएगा. So that will be Q by delta T. Understood students? Understood or not? yes, sir. तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, इट्स यूनिट विल बी हाउ मच, जूल पर केजी. यूनिट क्या हो जाएगा, जूल पर
सॉरी जूल पर केल्विन अंडरस्टूड यस सर नो Yes. एंड ये किसके ऊपर डिपेंड करता है थर्मल कैपेसिटी डिपेंड्स ऑन मास एंड नेचर ऑफ द बॉडी राइट इट डिपेंड्स on the mass depend on the mass and nature of body depends on mass and nature of body right depends on mass and nature of the body ठीक है अभी और एक चीज मतलब just to get acquainted with some few more terms और एक चीज है जो आपको जानना जरूरी है that is water equivalent क्या कहते हैं वाटर इक्विवेलेंट किसको कहते हैं लेट्स नो व्हाट वी से एज वाटर इक्विवेलेंट स्टूडेंट देखो थर्मल कैपेसिटी को मैंने एक बॉडी ले लिया और उसका टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो हीट देना पड़ेगा दैट इज थर्मल कैपेसिटी वी जस्ट न्यू ये सब नो अगर मैंने इसी हीट को उसी थर्मल कैपेसिटी ऑफ द बॉडी को मैंने एक्सप्रेस किया किन टर्म्स पे मास ऑफ द वाटर मतलब कितना मास के उतना ही पानी गर्म करेंगे जितना ही उतना ही हीट के बराबर होगा उसको हम कहते हैं वाटर इक्विवेलेंट राइट मतलब मास ऑफ द वाटर which when given the same amount of heat as to the body changes the temperature of the water through same range understood na students Yes. ठीक है तो चलो वाटर इक्विवेलेंट के बारे में लिखते हैं राइट जस्ट राइट वाटर इक्विवेलेंट राइट इफ thermal capacity if thermal capacity of a body if thermal capacity of a body is expressed in terms of mass of water in terms of mass of water it is called water equivalent it is called water equivalent student make a practice of writing everything underline properly all the scientific terms right now onwards you will also appear subjective test it's called water equivalent of the body it is called water equivalent of the body right तो उसका मतलब यह है थोड़ा अगर और अच्छी तरह से उसको डिफाइन किया जाए वी कैन आल्सो राइट इट इन दिस फॉर्म दैट इज water equivalent of a body right water equivalent of a body is the mass of water which when give same amount of heat which when give same amount of heat as to the body changes the temperature of water through same range as that of the body मतलब बॉडी को हमने कितना हीट दिए कि उतना कितना अमाउंट का पानी लेंगे सो दैट वो उतना ही हीट डेविएट मतलब वेरी करेगा ठीक है और वाटर यूनिट इसका यूनिट क्या हो जाएगा केजी हो जाएगा यूनिट ऑफ वाटर इक्विवेलेंट इज केजी करेक्ट इतना केजी का पानी का हीट जितना हीट देना पड़ेगा उसको कहते हैं वाटर इक्विवेलेंट अंडरस्टूड और नॉट ठीक है स्टूडेंट्स Yes. नेक्स्ट देखते हैं एक चीज कैलोरी क्या है व्हाट इज मीन बाय कैलोरी वाटर इक्विवेलेंट अगर कोई पढ़ लिया तो उसके बाद थोड़ा इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है कि व्हाट इज कैलोरी कैलोरी का मतलब क्या होता है 1 कैलोरी को कैसे हीट को डिफाइन किया गया है राइट दैट इज कैलोरी है ना जस्ट राइट नेक्स्ट कैलोरी अंडरस्टूड ठीक है ना लिखो राइट कैलोरी किसको कहते हैं 1 ग्राम की वाटर को 14.5 से 15.5 स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे अगर जितना हीट देना पड़ेगा उसको हम 1 कैलोरी कहते हैं राइट यस सर नो अभिषेक व्हाट यू आर डूइंग जस्ट राइट स्टूडेंट नेक्स्ट द अमाउंट ऑफ हीट
right? The amount of heat needed to increase the temperature, the amount of heat needed to increase the temperature of 1 gram of 1 gram of water from 14.5 degrees Celsius to 15.5 degrees Celsius at standard temperature and pressure is known as 1 calorie. Is known as 1 calorie, right? Just note it. And let's see कुछ important points के बारे में देखते हैं regarding specific heat. Let's note some important points regarding specific heat. Give heading some important points. Some important points regarding specific heat. Some important points regarding specific heat. Just a minute. But let's see some important points regarding specific heat, right? स्टूडेंट देखो स्पेसिफिक हीट जो होता है, पहला पॉइंट ये मैं कहना चाहूंगा कि स्पेसिफिक हीट हैज डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर. ठीक है, राइट? स्पेसिफिक हीट has different values for the different states of matter, for the different states of matter, अलग अलग के लिए अलग अलग. ठीक है स्टूडेंट्स, देखो अभी हमने क्या देखे कि मतलब डेल्टा टी इज इक्वल टू क्या लिखे हमने, Q बाई एम सी लिख सकते हैं ना, क्योंकि Q इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी. तो डेल्टा टी इज इक्वल टू Q बाई एम सी और नॉट. सो अगर स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगा, देखो C अगर ज्यादा होगा तो चेंज इन टेम्परेचर कम होगा ना. C मोर डेल्टा टी लेस, इनवर्सली रिलेटेड. यस और नो स्टूडेंट, गेटिंग और नॉट? Yes. एंड स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा किसका है? Specific heat of water is very large, that is 1 calorie per gram degree centigrade, right? ठीक है, specific heat of water is very 1 calorie per degree. So by observing or releasing large amount of heat, temperature changes by small amount. That's why water is used in hot water bottles as a coolant in radiators. That is the reason. ठीक है, next. ये Yes, sir. next ये एक point हुआ. स्पेसिफिक हीट इज फाउंड टू मैक्सिमम. स्पेसिफिक किस पे मैक्सिमम रहता है? हाइड्रोजन पे, राइट? एसपी हीट इज मैक्सिमम, राइट? एसपी हीट इज मैक्सिमम फॉर हाइड्रोजन, राइट? फॉर हाइड्रोजन that is 3.5 calorie gram inverse calorie inverse. Understood? ठीक है. और बाकी सब के लिए ये मिनिमम रहता है. रेडन के लिए, एक्टिनियम के लिए ये मिनिमम रहता है, राइट? देखो कोई भी एक आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, आई एम सेइंग अबाउट ए आइसोथर्मल प्रोसेस, आई एम सेइंग अबाउट ए आइसोथर्मल प्रोसेस. तो कोई भी आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, फॉर एनी आइसोथर्मल सब्सटेंस, तो स्पेसिफिक हीट क्या हो जाएगा? एसपी हीट आप देख सकते हो इज इंफिनिटी. मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब डेल्टा टी कितना है? 0 है ना, हीट कांस्टेंट, करेक्ट? तो C इज इक्वल टू क्या है? Q बाई एम डेल्टा टी है ना. अगर 0 डाल देंगे तो Q बाई एम इंटू 0 क्या हो जाएगा? इंफिनिटी हो जाएगा ना स्टूडेंट्स. गेटिंग और नॉट? यस. और एडियाबैटिक प्रोसेस पे क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय एडियाबैटिक प्रोसेस? टेम्परेचर कांस्टेंट, Q कांस्टेंट, राइट? Q इज इक्वल टू 0. एडियाबैटिक प्रोसेस. तो एडियाबैटिक प्रोसेस में Q क्या होता है? 0 होता है. तो अगर Q 0 है तो C इज इक्वल टू Q बाई एम डेल्टा टी. तो दैट इज Q इज 0 बाई एम डेल्टा टी. तो कितना हो गया? 0 हो गया.
और ये जो हम अब देख रहे थे मोलार स्पेसिफिक हीट देख रहे थे, तो मोलार स्पेसिफिक हीट मतलब अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेंटीग्रेड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। हमने जो मोलार स्पेसिफिक हीट की बात कर रहे थे ना, दिस इज मोलार स्पेसिफिक हीट, राइट? मोलार sp स्पेसिफिक हीट एक कांस्टेंट वॉल्यूम में भी हो सकता है, एक कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट? दैट इज cv, करेक्ट है ना? दैट इज cv इज इक्वल टू हाउ मच? q बाय n डेल्टा t, मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम में होता है। कांस्टेंट वॉल्यूम में टेम्परेचर को 1 मोल सब्सटेंस की टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाने के लिए जो हीट लगता है उसको क्या कहते हैं? मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, राइट? यस और नो? और फिर मोलर स्पेसिफिक हीट QV इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? N C स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा T, ये फार्मूला हम लिख सकते हैं, करेक्ट? और मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर भी हो सकता है, CP, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। दैट मींस कांस्टेंट प्रेशर पे अगर हम हीट को 1 मोल ऑफ सब्सटेंस की हीट को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएंगे तो जितना हीट देना पड़ेगा, दैट इज नोन एज मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? Understood or not? QP is the heat given to moles of substance at constant pressure, right? There is delta T is change in temperature. Understood or not, students? यहाँ तक समझ पे आया सबको?